ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 10th ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, PCS ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦ ਹਿੰਦੂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, PIB ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS RRB ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, JEE ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਜੋਨੋਸਿਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਜੋਨੋਸਿਸ ਡੇ। ਜੋਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਯੂਨੀਸੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਯੂਨੀਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ। ਹੁਣ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਕੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਮਿਤ ਪੰਘਲ ਦੁਆਰਾ ਆਈਬਾ ਵਰਲਡ ਮੈਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SPOT ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਟੌਪ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਪੰਘਲ ਦੁਆਰਾ 52 kg ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲੋਬਲੀ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਮੰਜੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਮੰਜੂ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਮੈਰੀ ਕੌਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੌਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈਬਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੌਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਲਟੇਰੀ ਬੋਟੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਤੋਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਲੇਟਰੀ ਬੋਟੇਸ ਐਟ ਰੈਡ ਬੁਲ ਰਿੰਗ ਇਨ ਸਪਿਲਬਰਗ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਵੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ। ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਵਲੇਟਰੀ ਬੋਟੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? RC ਭਾਰਗਵ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਾਈਡ ਫॉर ਇੰਡੀਆ।
गैटिंग कंपीटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इस बुक ਨੂੰ किस द्वारा लिखा गया? RC भार्गव द्वारा। RC भार्गव मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने। असम हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड देहिंग पथकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ी सिचुएटेड है असम दे विच। इसनूं की कीता जा रहा? नैशनल पार्क का दर्जा देने की गल की गई है। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? असम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो असम दे विच देहिंग पथकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं नैशनल पार्क बनाया जाएगा और एक किन्नवां नैशनल पार्क बन जाएगा? 6वां नैशनल पार्क बन जाएगा असम का। असम दे विच होर किहड़े नैशनल पार्क ने? दिब्रू साइकोवा कामेरी दिब्रू साइकोवा काजीरंगा नामेरी ओरांग। दिब्रू साइकोवा काजीरंगा मानस नामेरी ओरांग। इस तरीके नाल याद किते सी। दिब्रू साइकोवा काजीरंगा मानस नामेरी और ओरांग ये 5 नैशनल पार्क ने और 6वां नैशनल पार्क बना दिता जाएगा देहिंग पथकल नैशनल पार्क। नेक्स्ट है क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक क्रिकेट प्लेयर ने और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। साउथ अफ्रीका द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने दिता गया। साउथ अफ्रीका द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक नूं दिता गया। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हरियाणा स्टेट एम्पलॉयमेंट एंड लोकल कैंडीडेट ऑर्डीनेंस 2020 पास किया गया, जिस दे अंडर की कहा गया कि 75% प्राइवेट जिहड़ी सैक्टर जॉब्स ने वो लोकल्स नूं प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं। लोकल यानी कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਨੇ हरियाणा के ਰੈਸੀਡੈਂਸ ने डोमिसाइल के बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 75% है प्राइवेट सैक्टर जॉब्स का उसनूं रिजर्व कर दिता गया। किन्ना दे ਲਈ रिजर्व कर दिता गया? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उन्हां दे लोकल्स दे ਲਈ। नेक्स्ट है 51st एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जिसका हैडकुआटर कोलोगनी स्विट्जरलैंड दे विच है 1971 दे विच बनाया गया सी इसनूं और इसकी 51st एडिशन मीटिंग की है कि इसकी मीटिंग हैल्ड की जाती है, हर साल हैल्ड की जाती है। तो 1971 दे विच जदों बनाया गया तो इस साल अगले साल यानी कि 51st मीटिंग जी हैल्ड की जाएगी वो कितनी होएगी? 51st एडिशन होएगा और उसकी थीम इंपोर्टेंट बनेगी द ग्रेट रीसैट। द ग्रेट रीसैट उस दिन की थीम रहेगी। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा अनाउंस की गई भविष्य एक सेविंग अकाउंट स्कीम फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा भविष्य नाम की सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की गई जिस दे अंडर जिहड़े माइनर्स ने यानी कि 10 तो 18 साल की उम्र के बच्चे ने उन्होंने दे लई अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है और 0 अमाउंट से उसनूं खोलिया जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर मुंबई दे विच है और इसकी टैगलाइन बनती है कदर आपकी मेहनत की। अगर तुसी IBPS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगी टैगलाइन कदर आपकी मेहनत की। नेक्स्ट है जयंत कृष्णा पहले ऐसे इंडियन बने ने, फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने अपॉइंट किया गया ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया किसका? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट किए गए ने? जयंत कृष्णा नूं UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का पहले इंडियन चीफ अपॉइंट किए गए। इस तो इलावा रिसेंटली UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाल मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया सी बिजनेस नूं बूस्ट करने के लिए। बिजनेस के लिए MOU साइन किया गया सी, ये याद रखना। नेक्स्ट आप डिस्कस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के। सब तो पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। उन्हें आप महाराष्ट्र की गल की, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी इत्थे दे गवर्नर ने। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम भी इंपोर्टेंट बनता है अजीत पवार। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने और RN रवि इत्थे दे गवर्नर ने। अच्छा नागालैंड रिसेंटली 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया भी अनाउंस किया गया। ये रखना है डिस्टर्ब्ड एरिया 6 महीने के लिए किहड़ी स्टेट नूं? नागालैंड नूं। उड़ीसा नवीन पटनायक इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने और गणेशी लाल इत्थे दे गवर्नर ने।
पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, ये हर एक नूं पता ही होएगा। और चीफ गवर्नर ने इत्थे दे वीपी सिंह बदनौर इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने, सॉरी गवर्नर ने, वीपी सिंह बदनौर इत्थे दे गवर्नर ने। इस दे नाल ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी ने, ये याद रखने। अपना अज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज रायथू डायनोसोरम फार्मर्स डे। रायथू डायनोसोरम डे या कह सकते हैं फार्मर्स डे बाय आंध्र प्रदेश। ये अगर एक सिंगल स्टेट की गल करिए, अगर गल करिए फार्मर्स डे की, इंडिया का फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर आप गल करिए आंध्र प्रदेश का फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया गया 8 जुलाई को, 8 जुलाई को फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया गया आंध्र प्रदेश का। बेसिकली इत्थे दे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 14th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हों का नाम है जिन्हों का नाम सीगा YS राजशेखर रेड्डी, YS राजशेखर रेड्डी। जिथे YS आ जाता आंध्र प्रदेश के नाल आपां जोड़ते होंगे, न्यूज़ में याद रखनी है। और YS राजशेखर रेड्डी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन 14th चीफ मिनिस्टर ने इत्थे दे 8 जुलाई को इसनूं फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया गया, या कह सकते हैं रायथू डायनोसोरम डे ऑब्जर्व किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। इस तो इलावा 6 जुलाई आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं, डिस्कस किया अपने वर्ल्ड जोनोसिस डे, वर्ल्ड जोनोसिस डे ऑब्जर्व किया गया सी। 4 जुलाई को आप डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसनों हर साल जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल इसनों 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया सी। 2 जुलाई को डे ऑब्जर्व किया गया सी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। अच्छा 7 जुलाई को चॉकलेट डे ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। इसनों 2009 तो ऑब्जर्व किया जाता है। ये चॉकलेट डे नहीं कह रहा मैं, जिहड़ा फैबररी के होंगे ने उन्होंने बारे नहीं गल करते, आप डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड चॉकलेट डे की। वर्ल्ड चॉकलेट डे 2009 में ऑब्जर्व पहली बार ऑब्जर्व किया गया सी। इस तो बाद इसनों हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई को, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विच कंपनी पार्टनरशिप विद NSDC। NSDC की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस दे नाल पार्टनरशिप की टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडियन यूथ इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। बेसिकली लॉकडाउन होया तो लॉकडाउन दे विच अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, यूथ है जिहड़ा वो अनस्किल है, तो इस यूथ नूं डिजिटली स्किल्ड करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक कंपनी के नाम पार्टनरशिप की, जिसका आंसर है 3rd ऑप्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के नाल NSDC पार्टनरशिप करेगी कि जेडे यूथ है अनएम्प्लॉयड यूथ है उसनों डिजिटली स्किल्ड करेगी 12 महीनों के विच फॉर नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। इस एग्रीमेंट में साइन किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए NSDC की, NSDC का हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली के विच है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और मनीष कुमार इस दे हैड ने। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया ऑफिस है जिसने बेसिकली पार्टनरशिप की गई है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड का हैदराबाद तेलंगाना के विच ऑफिस है, हैदराबाद तेलंगाना के विच ऑफिस है। और उसके हैड ने अनंत माहेश्वरी। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के हैड ने सत्या नंडेला, ये याद रखने ने। रिलायंस रिसेंटली जियो मीट्स करके न्यूज़ के विच सीगी। जियो मीट एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। गूगल की गल करिए, गूगल के जोड़े सुंदर पिचाई गूगल के CEO ने, और इन्हों गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO अपॉइंट किए गए थे। ट्विटर के हैड ने जैक डॉर्सी। एमाजोन के हैड ने जेफ बेजोस। और ये इस टाइम वर्ल्ड के सब तो रिचेस्ट परसन ने अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी विद 189 मिलियन फॉलोअर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम एक नाम सुना होगा रॉक। बेसिकली इन्हों पूरा फर्स्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन रॉक। इन्हों निकनेम रॉक के नाम तो जाना जाता है। ये एक रैसलर से प्रो रैसलिंग लीग के विच काफ़ी फेमस से। और इस तो बाद ये हॉलीवुड के आ गए सी ड्वेन जॉनसन। इंडिया
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? 189 ਮਿਲੀਅਨ, 189 ਮਿਲੀਅਨ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕੇਲੀ ਜੀਨਰ, ਕੇਲੀ ਜੀਨਰ ਦੇ 184 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਕੈਲੀ ਜੀਨਰ ਦੇ 184 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਵੇਨ ਜੌਨਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁਮਾਂਜੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਸਟ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ 100 ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 55 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 54 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਟੌਪ 100 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has participated in the 4th edition of Ministerial on Climate Action from India। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਰਮਨੀ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੋਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮਾਈਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਧਰਵੜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which bank announced it has entered into a tie-up with Star Health and Allied Insurance to provide health insurance products to its customers। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ LIC ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ? ਕਰੂਰ ਵਿਸਾਏ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕਰੂਰ ਵਿਸਾਏ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਰੂਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IBPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਫੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਕਰੂਰ ਵਿਸਾਏ ਬੈਂਕ ਕਰੂਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ N ਜਗਨਨਾਥਨ।
करूर वैसाय बैंक के हैड ने। ICICI बैंक का हैडकुआटर भी मुंबई दे विच है। HDFC का बैंक हैडकुआटर मुंबई दे विच है। PNB की गल करिए न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और SBI का हैडकुआटर मुंबई दे विच है। SBI के हैड ने रजनीश कुमार इन्हों का नाम याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा जी बाकी इन्होंने बैंक के रिलेटेड न्यूज़ ने एक होर क्वेश्चन आएगा अगे बैंकिंग के रिलेटेड, उस दे विच आपां डिस्कस कर लांगे। नैक्सट चलते हैं विद विच अच्छा बैंक नहीं आएगा, विद विच एप्लीकेशन कह सकते हैं। विद विच एप्लीकेशन ओला अनाउंसड पार्टनरशिप टू एनहेंस डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स के लिए ओला के जोड़े ओला के कस्टमर ने, ओला की एक टैक्सी कंपनी है, तो कंपनी के लिए जी पेमेंट्स ने डिजिटल करने के लिए और उसदे विच की जाएगा टॉपअप वगैरह डिस्काउंट्स वगैरह दिते जाएंगे जिवें स्विगी द्वारा लॉन्च किया गया सी। सिमिलर तरीके दे नाल पार्टनरशिप हैल्ड की गई है किहड़े बैंक दे नाल, किहड़ी एप्लीकेशन दे नाल, सॉरी इस एप्लीकेशन नूं किया गया फोनपे दे नाल। फोनपे दे नाल ओला द्वारा पार्टनरशिप की गई है। ओला द्वारा किस दे नाल पार्टनरशिप की गई? फोनपे दे नाल। ये याद रखना है, ठीक है जी। इस तो इलावा इस बारे होर की डिस्कस कर सकते हैं? इस तो इलावा इस बारे होर कुछ नहीं डिस्कस करते आप। नैक्सट चलते हैं। हु हैज़ बीन सिलैक्टेड एज अ मैंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस एंड टैक्नोलॉजी पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है साइंस एंड टैक्नोलॉजी पॉलिसी के उत्ते, साइंस एंड टैक्नोलॉजी पॉलिसी के उत्ते, उस एज ए मैंबर अपॉइंट किए गए हैं, एज ए मैंबर सिलैक्ट किए गए हैं। कौन सिलैक्ट किए गए हैं? सीजू जॉर्ज। अपना आंसर होएगा फर्स्ट ऑप्शन, सीजू जॉर्ज नूं एज ए मैंबर इलैक्ट किया गया, सिलैक्ट किया गया है किस दे विच? साइंस एंड टैक्नोलॉजी पॉलिसी की कमेटी दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इमरान खवाजा ICC के इंटैरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। कल भी ये ऑप्शनस आप डिस्कस किए, बिल्कुल सेम ऑप्शनस रखे गए हैं इत्थे। ICC के जोड़े ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਅरमैन ने शशांक मनोहर, इन्होंने रिजाइन दिता तो उस तो बाद इंटैरिम तौर पर इमरान खवाजा बनाए गए हैं जदों तक ICC की मीटिंग हैल्ड नहीं की जाती। ICC का हैडकुआटर दुबई UAE दे विच है। रविंदर भास्कर की गल करिए, रविंदर भास्कर अपॉइंट किए गए सी, CEO अपॉइंट किए गए सी सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन समथिंग इस तरीके का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके CEO अपॉइंट किए गए सी रविंदर भास्कर। लैज़रूस चकवेरा नूं प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया मलावी का, मलावी कंट्री के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए लैज़रूस चकवेरा। मलावी कैपिटल लिलोंगवे, करंसी क्वाचा चलती है, मलावी कैपिटल लिलोंगवे, करंसी क्वाचा चलती है। गुडनी जॉनसन प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं आइसलैंड के अपॉइंट किए गए गुडनी जॉनसन। नैक्सट है विद विच ऑर्गेनाइजेशन एक MOU साइन किया गया सेबी के नाल डाटा एक्सचेंज के लिए। बेसिकली MOU याद रखना है कि दो चीज़ों के किया गया, किस दे लिए किया गया? डाटा एक्सचेंज के लिए। डाटा एक्सचेंज के लिए सेबी द्वारा, सेबी दे नाल किसने पार्टनरशिप की? यह पार्टनरशिप की CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स। इसके हैड कौन ने? PC मोदी इसके हैड ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स दे, और इस द्वारा पार्टनरशिप की गई है किस दे लिए? डाटा एक्सचेंज के लिए। किस दे नाल? सेबी दे नाल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हैड कौन ने? अजय त्यागी। ये भी याद रखना है। सेबी के हैड कौन ने? अजय त्यागी। CBDT के हैड कौन ने? PC मोदी। इस तो इलावा CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरैक्ट टैक्स की सब तो बड़ी एग्जाम्पल GST है। इस तो इलावा इस बारे अगर आप डिस्कस करिए, इसने रिसेंटली लॉन्च किया तुरंत कस्टम नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी। कमेंट बॉक्स में दसने कि किहड़ी 2 सिटी के इसनूं लॉन्च किया गया सी ऑन ट्रायल बेसिस से हजे इसनूं लॉन्च किया गया। अगर ये पूरे तरीके नाल सक्सैसफुल रहिंदा है तो इसनूं पूरी कंट्री के लागू किया जाएगा तुरंत कस्टम।
ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? CSIR ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। अगर इस दे बारे गल करिए, इसने की किया सी? किसान सभा एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया सी। रिसेंटली इस दे द्वारा किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ ना कुछ लॉन्च करती ही रहती है। अगर आप गल करिए इस दे द्वारा रिसेंटली सुमेरू पैक्स लॉन्च किए गए सी। किस दे लई? PPE दे लई लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा इस द्वारा UV सैनिटेशन चैंबर लॉन्च किया गया, UV ब्लास्टर लॉन्च किया गया, डिफरेंट सैनिटाइजर लॉन्च किए गए, स्वस्थ क्लीन UV स्वस्थ क्लीन समथिंग इस तरीके के इनिशिएटिव सारे लॉन्च किए गए सी DRDO द्वारा। DRDO के हैड का नाम इंपोर्टेंट बनेगा G सतीश रेड्डी DRDO के हैड ने। इस तो इलावा इन्हों USA द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिता गया सी। USA द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिता गया सी। इसरो की गल करिए, इसरो के हैड ने K Sivan इसरो के हैड ने। इसरो नूं बनाया गया सी 15 अगस्त 1969 नूं इसरो डेवलप किया गया सी और कर्नाटका बेंगलुरु के विच हैडकुआटर है इसरो का। नैक्सट है इन PSA वर्ल्ड रैंकिंग दे विच किहड़े इंडियन प्लेयर द्वारा टॉप 10 पोजीशन हासिल की गई? किहड़े इंडियन प्लेयर द्वारा टॉप 10 पोजीशन हासिल की गई PSA वर्ल्ड रैंकिंग? कल आप आइबा की वर्ल्ड रैंकिंग डिस्कस की सी। आइबा की वर्ल्ड रैंकिंग दे विच अमित पंगल का नाम टॉप के उत्ते रहा सी। और PSA की है बेसिकली स्क्वैश, जी स्क्वैश गेम है उसकी एसोसीएशन है। इसकी बेसिकली फुल फॉर्म बनती है प्रोफैशनल स्क्वैश एसोसीएशन, जिसका हैडकुआटर है लीड्स UK दे विच स्क्वैश का हैडकुआटर, स्क्वैश एसोसीएशन का हैडकुआटर है। और 10th शिफाली वर्मा नूं पैप्सीको का ब्रांड एंबेसडर चुनिया गया सी। शिफाली वर्मा नूं। संजीता चानू की गल करिए, संजीता चानू बिलोंग करते हैं बॉक्सिंग दे नाल, सॉरी बॉक्सिंग दे नाल नहीं, संजीता चानू बिलोंग करते हैं वेट लिफ्टिंग दे नाल बिलोंग करते हैं। और संजीता चानू नूं रिसेंटली अर्जुन अवार्ड दिता गया क्योंकि इन्हों का जो 2018 का अर्जुन अवार्ड इन्हों का पेंडिंग सीगा क्योंकि इन्हों के उत्ते डोपिंग चार्जिस लग गए थे। उन्होंने डोपिंग चार्जिस रिमूव किए गए वेट लिफ्टिंग एसोसीएशन द्वारा, तो उस तो बाद इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया। किरणप्रीत कौर बेसिकली एथलीट ने, गोमैथी मरीमुथु भी एथलीट ने। दोनों रिसेंटली बैन किया गया लॉन्ग डिस्टेंस रनर ने। किरणप्रीत कौर लॉन्ग डिस्टेंस रनर ने और गोमैथी मरमुथु बेसिकली 800 मीटर रनर ने और इन्हों बैन किया गया। गोमैथी मरमुथु एशियन चैंपीयनशिप दे विच रिसेंटली जी एशियन चैंपीयनशिप्स हैल्ड की गई सी उस दे विच गोल्ड मैडल हासिल किया सी गोमैथी मरीमुथु ने। नेक्स्ट विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट 2 countries in the South East Asia region to eliminate the measles and rubella ahead of 2023 target? साउथ ईस्ट एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਮੀਸਲਸ ਔਰ ਰੂਬੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਟੈਕਲ ਕਰਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਕਿਹੜੀ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ? ਮਾਲਦੀਵਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। और 5th ऑप्शन बोथ 2 and 3 मालदीव्स और श्रीलंका द्वारा श्रीलंका ऐसी पहली 2 कंट्रीज़ बनिया ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन के विच जिसने मीसल्स और रूबेला इन्हां दोनों बीमारियां नूं खत्म कर दिता है अपनी कंट्री दे विचों। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इंडिया की, तो इंडिया दे विच हजे भी मीसल्स और रूबेला के केसिस मिलते हैं। इंडिया ने पूरी तरीके नाल खत्म नहीं किया। मालदीव्स कैपिटल माले है। श्रीलंका कैपिटल है श्रीलंका कैपिटल की है? श्रीलंका कैपिटल कोलंबो है। वैसे श्री जयवर्धेपुरे कोटे श्रीलंका की कैपिटल है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक लैजिस्लेटिव कैपिटल है, ये याद रखनी है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ उसका नाम सीगा ऑपरेशन समुंदर सेतु। ठीक है जी, ये याद रखना है। और इस तो इलावा इस दे विच किहड़े-किहड़े शिप्स भेजे गए सी? INS जलाशय और मगर, जलाशय और मगर ये दो शिप्स नूं भेजा गया सी इस दे लई। नेक्स्ट है विच बैंक विल इन्वेस्ट ₹760 करोड़ इन येस बैंक। येस बैंक दे विच 1760 करोड़ रुपए किहड़ा बैंक इन्वेस्ट करेगा? किहड़ा बैंक इन्वेस्ट करेगा? SBI इन्वेस्ट करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वह 1760 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा येस बैंक दे विच। येस बैंक की आपां डिस्कस कर चुके सी। SBI की हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है और रजनीश कुमार इस दे हैड ने। पंजाब नैशनल बैंक हैडक्वार्टर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। HDFC बैंक, HDFC बैंक दे अगर आप न्यूज़ की गल करिए मुंबई के ही हैडक्वार्टर है। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे इनीशिएटिव HDFC बैंक सॉन्ग है जिहड़ा लॉन्च किया गया सी HDFC बैंक द्वारा। इसके लिरिक्स दिते सी प्रसून जोशी ने और म्यूजिक दिता सी AR रहमान द्वारा। समर ट्रीट्स कैंपेन, समर ट्रीट्स कैंपेन HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया सी। ICICI बैंक ने इंस्टा लोन फैसिलिटी नूं लॉन्च किया, इंस्टेंट लोन फैसिलिटी ICICI बैंक। इस तो इलावा अगर आप गल करिए ICICI बैंक द्वारा WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला पहला बैंक बनया सी ICICI बैंक। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक की गल करते हैं। एग्जिम बैंक ने रिसेंटली 2 कंट्रीज़ नूं लोन दिता सीगा। पहली कंट्री है मलावी और दूसरी निकारागुआ। मलावी नूं दिता गया सी 215 मिलियन के समथिंग और निकारागुआ नूं 20 मिलियन के समथिंग। ठीक है जी। मलावी नूं दिता गया सी वाटर सप्लाई स्कीम्स दे लई, वाटर सप्लाई स्कीम्स दे लई। निकारागुआ नूं दिता गया सी हॉस्पिटल की रीकंस्ट्रक्शन के लिए, एक हॉस्पिटल बिल्डिंग की रीकंस्ट्रक्शन के लिए इन्हां नूं यह दिता गया सी 1700 एग्जिम बैंक द्वारा लोन निकारागुआ कंट्री नूं। ठीक है जी। मलावी कैपिटल, मलावी कैपिटल की है? मलावी कैपिटल हुणे आपां डिस्कस करके हटे सीगे। मलावी दे आपां प्रेजिडेंट डिस्कस किते ने लिलोंगवे और करेंसी क्वाचा चलती है। निकारागुआ कैपिटल मानागुआ, निकारागुआ कैपिटल की है? मानागुआ। ठीक है जी। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। डिफरेंट बैंक्स के बारे जिन्नी भी न्यूज़ होंदियां ने, अगर तुसी IBPS की तैयारी कर रहे हो तो यह न्यूज़ अपनी सारी इंपोर्टेंट बननगियां। अगर तुसी सिंपल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन्हां न्यूज़ सिर्फ ओवरव्यू अपने लिए इंपोर्टेंट बननगे कि किहड़े बैंक ने किस कंट्री नूं लोन दिता या कितना लोन दिता, सिर्फ इन्ने की चीज़ इंपोर्टेंट बनेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी मेड इन इंडिया। इंडिया दे विच वर्ल्ड का 3रा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तीसरे तो पहले डिस्कस करने तो पहले आप डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट है जोड़ा वह भी इंडिया के ही बनाया गया। वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के बनाया गया सी, गुजरात के अहमदाबाद के, जिसका नाम रखा गया सी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसनों इनोग्रेट किया गया सी डोनाल्ड ट्रंप, प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। नमस्ते ट्रंप ईवेंट के उत्ते इंडिया के आए सी डोनाल्ड ट्रंप और इन्हों द्वारा इनोग्रेशन की गई सी अहमदाबाद के वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की। अगर सैकेंड लार्जेस्ट की गल करिए, सैकेंड लार्जेस्ट आस्ट्रेलिया के है। सैकेंड लार्जेस्ट आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है जोड़ा वह वर्ल्ड का सैकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। और 3rd लार्जेस्ट भी बनाया जाएगा राजस्थान के, बेसिकली राजस्थान के जयपुर के इसनूं बनाया जाएगा। गुजरात की एक स्कीम डिस्कस कर लेने, वहीली डिग्री योजना। जयपुर तो याद आया, जयपुर नूं नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया सी। जयपुर नूं यूनैस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के विच ऐड किया गया सी। जयपुर नूं ही पिंक सिटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे अगर आप कोई न्यूज़ डिस्कस करनी हो तो उत्तराखंड स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर, स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर गंगोत्री नैशनल पार्क के विच बनाया जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश उत्तराखंड के ऋषिकेश के विच ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ओपन किया जाएगा। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। उत्तराखंड ने रिसेंटली गाडसेन नूं अपनी समर कैपिटल अनाउंस किया सी। ठीक है जी।
इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के बारे अगर आप डिस्कस करिए, मेघालय, अच्छा उत्तराखंड और मेघालय बारे एक न्यूज़ होर डिस्कस कर लें। रीसेंटली एक स्पीसीज़, एक बटरफ्लाई स्पीसीज़ फीमेल बटरफ्लाई स्पीसीज़ इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज़ डिकलेयर किया गया है, गोल्डन बर्ड विंग। नाम याद रखना है, गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग इंडिया की लार्जेस्ट फीमेल बटरफ्लाई डिकलेयर किया गया और कितों फाइंड की गई है, उत्तराखंड के विच। कितों फाइंड की गई है, उत्तराखंड के विच। और अगर गल करिए मेल लार्जेस्ट बटरफ्लाई की, तो वह पाई गई सी मेघालय के विच। मेल लार्जेस्ट बटरफ्लाई कित्थे है, मेघालय के विच है। और फीमेल लार्जेस्ट बटरफ्लाई कित्थे पाई जाती है, पाई गई उत्तराखंड के विच। रिसेंटली पाई गई है, न्यूज़ के विच सीगी ये चीज़। और गोल्डन बर्ड विंग इस दा नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। इस न्यूज़ के बारे डिटेल के विच आपां कल डिस्कस करांगे, कल की क्विक रिवीजन के विच। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।